है गई सो चलो आज एक हफ्ता हो गया अपने को, दिस इज द 7th डे। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि वीकली आई विल डू दिस अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो। ओके ओके सो अबाउट माय वीक, तो मैंने लिखे एक तो GS3 के टेस्ट, देन अपने नोट्स कंप्लीट किए, कुछ मेजर पोर्शन ख़त्म हो गया मेरा GS3 का, जो स्टैटिक है मोस्टली। करंट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं आप केप्ट देम कि बाद में पढ़ेंगे। हाँ ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज कि एक तो द इंटरव्यू ऑफ सॉरी इंटरव्यू हाँ सॉरी कॉन्फ्रेंस press conference of Zoran Mamdani and President Trump. Okay, this is the most hilarious thing and like something that our Indian media should learn, or at least they should like by seeing this we can really analyze the state of our Indian media. The type of questions that they have asked to the president and Zoran Mamdani each, if any of the news reporters asked this the same day today to President, our Prime Minister Modi ji, or the Home Minister Amit Shah, so I'll tell you their response. I'll play those audios right now. One is here, another one is here. Okay. Why I'm saying this कि एक तो इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देयर party spokespersons are doing the press conference, not our president or home minister and all. They don't speak to the camera or press, and if they are doing some sort of interview, you know what kind of interview are they doing. One of the last interview of Mr. Modi, our prime minister, I've seen is with an anchor who asked him the very uncomfortable question about Gujarat riots, and then he asked told him कि let's just cut the interview, पानी दो मेरे को, and is this how you do your friends, is कि आप ऐसे बुलाते हो and then ऐसे questions पूछते हो, and then he abruptly ended the interview. But at the same time in the US, this press conference by Zoran Mamdani and President Trump, people have asked whether Mamdani thinks Mr. President is a fascist guy, और उसका ट्रम्प रिप्लाई करता है कि चल मार भाई, बोल दे इनको, एक्सप्लेन करने से ज़्यादा अच्छा है तो इनको हाँ बोल दे. If same things and if similar level of shit, if anyone ever asked Mr. Modi, or जैसे अभी this is very sad thing कि there have been some blast, like पहलगाम blast हुआ था, पुलवामा में हुआ, then दिल्ली में हुआ. These are things, then we did retaliate with Operation Sindoor and surgical strikes and all that everyone support and everyone should support. Okay, the question shouldn't be on that part कि उसके बाद retaliate. The question should be on कि भाई attacks क्यों है. अब now if they go and compare कि पहले भी होते थे, this doesn't matter. वो comparison is, if you are comparing yourself with another government just to justify your condition, then you are doing very bad. I think ये मेरा personal opinion है. So अब इफ एनीवन आस्क्स मिस्टर, ये इस पॉइंट पे इस चीज से रिलेटेड आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि व्हाई पहलगाम हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस. Nobody till date have answered this from our government side. If let's just imagine कि ये क्वेश्चन मिस्टर अमित शाह से या फिर मिस्टर मोदी से कोई पूछ लेता है, तो आई एम श्योर वो बंदा गायब हो जाएगा. जो उस पे ना ये यूएपीए वगैरह या नहीं, कोई तो एक्ट लगा लेंगे, उसको धर देंगे अंदर कि जा भाई बहुत तेरी पत्रकारिता हो ली, अब तू जाके आराम कर. But I think I'll play some clip of that interview now, that now you will understand the type of question they have asked to them and the level of questions being asked by our media or our so-called interviewer like Akshay Kumar and all to our Prime Minister. For you, you've referred to Mr. Mamdani as a communist. Could you describe why you feel that way? And also, will you do anything to stop
him from arresting Prime Minister Netanyahu if he visits New York? Well, we didn't discuss your second part of the question, and on your first part, I mean, he's got views that are a little out there, but who knows? I mean, we're going to see what. You referred to President Trump as a despot who had betrayed the country. You said you'd be his worst nightmare and accused him of having a fascist agenda. Are you planning to retract any of these remarks in order to improve your relationship? I think both President Trump and I, we are very clear about our positions and our views, and what I really appreciate about the president is that the meeting that we had focused not on places of disagreement, which there are many, and also Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. Bhai, there's absolutely no comparison can be drawn between these two. And just just for the context, Zoran Trump, like, all he was all out against Zoran Mamdani. Trump did not even support his own party member. So the it to against Mamdani, he supported a random third party person who had a very good chance to win this. So Trump went out of his way to, like, oppose Zoran Mamdani, but now he has done it, a meeting with him, then a press conference, and in that press conference itself, he you will see this, he is not really speaking against him. अपने जो देश के नेता है ना, ये दे कैन नॉट, लाइक, आई हैव सीन पोस्ट, ये बहुत एक अच्छे पॉइंट पे दैट दे हैव अग्रीड, और कि कोई गलत है तो ठीक है ना, मान लो, क्या दिक्कत है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सब पार्टियों ने बहुत ओपनली सपोर्ट किया, दैट्स अ गुड थिंग। बट देयर इज अ एक्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एक्ट, प्राइमरली एनजीओ, पहले पार्टीज पे भी लगता था, ये इसका वायलेशन दोनों पार्टियों ने किया, ठीक है। अब कांग्रेस को इसका अपोजिशन करना चाहिए था, बट कांग्रेस खुद इस केस में फंसे। दोनों पार्टियों ने चूना ही लगा दिया देश के भाई, दोनों ने बोला कि साले लॉ को ही चेंज कर देते हैं, किसी को क्या ही पता लगेगा। दोनों फ्री, कोर्ट ने उन दोनों के लिए, दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तक बात आ गई थी, देन दे चेंज द एंटायर फकिंग लॉ। दिस इज द स्टेट ऑफ वो, कि अगर ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ों पे कोई क्वेश्चन पूछ लेना, एक तो जवाब करने कौन आता है। फ्रॉम रूलिंग पार्टी कम्स मिस्टर संबित पात्रा, जिनका हर दूसरी लाइन में तो ऐसे निकल जाता है कि अरे भैया हमारे ऊपर तो खतरा हो रहा है। तो फक भाई, क्या खतरा है, मैं यहाँ बैठ के सांस ले रहा हूँ, बढ़िया तू ले रहे थे, क्या दिक्कत आ रही है भाई। एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस being asked to them is on entirely on other different level. ये you should, I think, once ये इंटरव्यू आई, मेरे को ना तो मैं यूएस को सपोर्ट, कोई मतलब देयर इज नो सपोर्ट थिंग, बट द इंटरव्यू इज, द क्वेश्चंस आर रियली सो लाइक, एवरी क्वेश्चन कैन मेक मिस्टर जो प्रेसिडेंट है उनको अनकंफर्टेबल कर सकता है, नहीं कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। इंडिया में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप आम कैसे खाते हो सर, दिस इज द क्लिप। ये हैं भाई तुम, एंड देन यू गो, जब और फिर उसके बाद लोग ऐसे सोशल मीडिया पे आके वो करेंगे, द वर्ड आई डोंट वांट टू यूज, बट आर कि रोड्स नहीं बन रहे, फलाना नहीं हो रहा, ढिमकाना नहीं हो रहा। भाई तुम, जब जब ये इस सब चीज़ की फाउंडेशन हो रही थी ना, कि मीडिया वाज बीइंग, कि ऐसे कि मीडिया भी चाटुकारिता में लग गया था ये सब, तब तो एवरीवन वाज लाइक कि ठीक, क्या हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है ये सब। भाई मीडिया मीडिया इज बीइंग, लाइक, एवरीवन इन, मैं जो मैं या फिर जो भी कोई भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है ना, दे आर, लाइक, वो बीजेपी के स्पोक पर्सन ही हो गए, वो दे आर डिफेंडिंग देम, वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। आई एम लाइक कि गवर्नमेंट, तुम्हें पता है कितना पैसा खर्च कर रही है उनकी ये प्रचार स्कीमों के प्रचार में, नहीं, गवर्नमेंट के प्रचार में, कि हमने ये उखाड़ लिया।
इस पे गवर्नमेंट जितना पैसा खर्च कर रही है ना, इतना इफ दे हैव कहीं अच्छी जगह की ये रोड्स को अच्छी क्वालिटी का बनाने में कर लेते, या फिर इनके रिपेयरमेंट में अच्छी क्वालिटी का, तो ठीक है, रिपेयर में भी कर लेते तो बहुत अच्छे रोड चल रहे होते, बारिशों में ये हालत नहीं होती। जो मैं यहाँ से लाइब्रेरी जाता हूँ ना, मेरी गाड़ी की हालत खराब हो गई है भाई। ये चल रहा है, लोग क्वेश्चन करना भूल गए लोग। कोई गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहा है, समवन इज आस्किंग क्वेश्चन कि यार ये गलत है, इस चीज पे क्वेश्चन पूछो, अरे ऐसे कैसे पूछ रहा है भाई। आई डोंट गेट इट कि क्यों है भाई लोगों में इतना कि आई विल प्रोटेक्ट दिस गवर्नमेंट। भाई प्रोटेक्ट तो मेरे को भी करना है, गवर्नमेंट तो हमारे देश की भी है, बट व्हाट डू आई डू विद दिस ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस हैपनिंग। अरे ये इट्स नॉट अबाउट दैट विच पार्टी इज इन द सेंटर, कि बीजेपी इज इन पावर और कांग्रेस इन पावर। भाई मेरे को जिस रोड पे चलना है वो सेंटर में कोई भी हो या हुएवर इज देयर, मेरे को किसी हाईवे पे जाना है, इट डजेंट मैटर, मेरे को हाईवे से काम है। वहाँ पे मोदी बैठे, वहाँ पे राहुल गांधी बैठे, वहाँ कोई नहीं बैठा है, जो मेरे को क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ से। एंड इफ समवन इज सिटिंग देयर देन दे शुड बी आंसरेबल टू ऑल दीज क्वेश्चंस कि क्या हो रहा है, इज एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स कि प्रॉफिट प्रॉफिट बनाना है, या फिर रियली समथिंग गुड है, कुछ कुछ इंटेंशन भी है, क्या चक्कर है, क्या चल क्या रहा है भाई। और ये लोग क्वेश्चन करना कब स्टार्ट करेंगे? जब तक क्वेश्चन, इफ यू डोंट क्वेश्चन एनीथिंग तो कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट एनीवन विल इम्प्रूव इफ यू डोंट आस्क देम एनीथिंग कि यार व्हाट, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई हैवंट यू डन दिस, तो नो वन विल इवन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग देमसेल्फ। ओके, ये तो related to Indian media or how journalism should happen in general, ठीक है। देन कम्स वो जो मैं तुम्हें पिछले शॉर्ट में बताया था, इंडिया बांग्लादेश का सेमीफाइनल। भाई क्या क्या चरस बोया उन लोग, क्या वो ये कलेश करना या कुछ ऐसे करने को चरस बोना ही बोलते हैं हम लोग तो। एटलीस्ट एक तो लकीली मैच जीत रहे थे अच्छे से, बट ठीक है, मैच जीतना हारना वो अलग है। वो समहाउ दे मैनेज टू ड्रॉ इट, बांग्लादेश वालों ने कुछ तो गलती करी तो दे मैच ड्रॉ हो गया। देन दे गोस टू सुपर ओवर। सुपर ओवर में ऐसे तीन चूतियों को भेजते हैं ये लोग जो उस मैच में चले ही नहीं ढंग से। उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे बंदों को उठा के भेज दिया, जो बंदे पूरे सीरीज में अच्छा खेलते आ रहे हैं, ओपनर्स हैं, उनको नहीं भेजा। इन दो चवनों को भेजा तुमने, जो दोनों शुरू की दो बॉल पे आउट हो गए, तो तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली सुपर ओवर खेलने की, वो उसमें तुमने हक दिया, दो बॉलों पे सलट गए। ये ये भाई द क्या क्या हुआ था भाई, ये मैं देख के वो मैच ना भाई, क्या सस्पेंस थ्रिलर भाई, कुछ नहीं होता भाई। वो जो ओजी शेट्टी है उसमें जो हगा है इन्होंने भाई, मतलब हारना जीतना ठीक है, लेकिन भाई वो हारना जीतना, वो हगना था भाई, प्रॉपर हगा है भाई, हगा एकदम कति शिट टट्टी भाई। देन कम्स कि ये एशेज सीरीज चल रही है इंडिया, सॉरी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की, तो इट्स वेरी फेमस। और क्वाइट सो कि जो फॉक्स क्रिकेट नाम का वहाँ का चैनल है, जैसे अपने यहाँ पे स्टार है या फिर सोनी वाले हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, वहाँ पे वो लोग करते हैं। तो कुछ टाइम पहले जब इंडिया में कुछ ऐसा मैच टेस्ट क्रिकेट हो रहा था, उसमें स्टार्टिंग के दिन में 15 विकेट गिरे थे। तो दे मेड अ वेरी वेग न्यूज़ अबाउट इट कि यार देखो कैसी पिच बना रहे हैं, ढक के पिच नहीं बनाई जाती इनसे, एक दिन में 19 विकेट गिर गए फलाना डेम का, 15 विकेट सॉरी। देन दिस फर्स्ट डे ऑफ दिस एशेज सीरीज, 19 विकेट्स फॉलिंग भाई। ये तो उस फॉक्स मीडिया पे होगी कि यार देखो तुम क्या दुगला, और उसको वो बोल रहे हैं कि भाई व्हाट अ गेम भाई ऑस्ट्रेलिया, मजा ही आ गया, तुमने क्या ऑल आउट कर दिया, खत्म खत्म। देन कम्स भाई कि क्या क्या मैच हुआ है भाई वो, लाइक पीसेस ऑफ बॉलिंग, बैटिंग, अटमोस्ट भाई कि पहली इनिंग में बॉलर्स ने जो डोमिनेट किया, मिशेल स्टार्क, माइकल स्टार्क जो भी, मिशेल स्टार्क जो भी है, स्टार्क है उसे तो, स्टार्क ने जो स्पेल डाले हैं,
ओहो! देन उसके सपोर्ट में जो आए, उसने लिए 7 विकेट, बाकी लोगों को 3 विकेट। क्रेज़ी स्पेल। देन इंग्लैंड वाले आते हैं, वो भी पहले दिन में 9 विकेट गिरा देते हैं उनके, ऑल आउट होते हैं। अब पहली बार में इंग्लैंड लीड में है, पहली इनिंग के बाद, ठीक है। देन इंग्लैंड इंग्लैंड मेक सम रन, थोड़े रन और बनाते हैं वो लोग, डिसेंट से रन होते हैं और वो भी ऑल आउट हो जाते हैं क्योंकि पिच ही ऐसी है। बट धीरे-धीरे पिच का सपोर्ट ऐसा कम होता जा रहा है बॉलर्स के लिए, एंड बाय द टाइम से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है, भाई ट्रेविस हेड ने जो पीटा है उनको, जो लथेड़ा, पूरे मैच में बैट्समैनों की तो चली ही नहीं है, बॉलर्स की चली है। और ट्रेविस हेड प्लेड लाइक बेटर देन वनडे इन अ टेस्ट। टेस्ट, टी20 और वनडे का बीच का मान लो, वनडे भी नहीं भाई, ही प्लेड सो, भाई जो पीटा है भाई, धोया है उसने, धोया, लिटिल धोया है भाई। छक्के चौके भाई, यार क्या मस्त चीज हुई थी। ठीक है। उसके बाद मेरा मेरे टेस्ट की बात करता हूँ मैं भी। आई एम लाइक स्टक एट अ लेवल ऑफ मार्क्स, ना तो सुपर हो रहा है ना कम हो रहा है, और आई एम लाइक कि भाई ऐसे करके तो क्या ही होगा, थोड़ी सी ओके। सो यार एक और, आई नीड एन ओपिनियन। ये तो वैसे वो है, आई एम स्टार्टिंग टू, आई एम प्लानिंग, स्टार्टिंग आई एम प्लानिंग कि आई विल स्टार्ट another series on ये long form videos की, named behind the scenes, and where I will like make something video relating to कि explaining something a phenomena, और उसके पीछे की जो story, या फिर अपने को कुछ उसका पता नहीं है, how it goes back to हिस्ट्री, हिस्ट्री का नहीं बट उसमें बहुत सारे फैसेट्स होंगे। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन, लाइक वेरी सिंपल, आई वाज थिंकिंग कि यार ये सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इट्स इजियर फॉर मी टू फाइंड सच टॉपिक्स ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। बट ग्रीन रेवोल्यूशन का सबको पता है कि एयर इंडिया को चाहिए था, तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन वेरी सिंपल कि HYV सीट्स, ये सबको पता होता है कैसे हुआ। बट हाउ डिड इट हैपन एक्चुअली, वाई वी नीडेड इट, एंड फलाना ढिमका। सो something on that line. So I'm planning to make such videos. So let me know if you guys would watch these, or is this a very, is this a good idea? Maybe something doable. Then we'll do something about it. I made some script, but ये उसमें ना मेरे को एडिटिंग में बहुत ऐसा लग रहा है कि एडिटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम आई हैव फॉर द फॉर एडिटिंग सच वीडियोस। तो लेट्स जस्ट सी कि क्या कर सकते हैं उसके बारे में। ओपन टू आइडियाज़, क्योंकि मेरे को उसमें विजुअल्स चाहिए, एआई के विजुअल्स चाहिए, तो इफ़ एनी टूल यू नो, सो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, बाय बाय, सी यू, एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।